Hello and welcome. Welcome to the fifth learning session of chapter number 5 of geometry, which is coordinate geometry. So far, we have seen the distance formula, and using the distance formula, we can find the distance between any two points given on the xy plane if you know their coordinates. And using the distance formula, we were able to solve all the sums given in practice set 5.1. In the last learning session, we moved on to the 5.2 practice set, right? Practice set 5.2. We learned about section formula and we were done with the second question, right? In the second question, we had three sub questions, out of which the first sub question I solved it completely. The second sub question we solved it together, and the third sub question I gave you all as homework as practice question, right? Now the first question is also very similar to questions given in question number 2. Okay, so that also I'm not going to solve it for you. I'm going to give it as your practice question. Okay, I'm going to give you all as practice question. So I'll first read out the question number 1, explain you the question, and then y'all are going to solve it by yourself completely. Okay, so question number 1 of practice set 5.2. Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio of 2:3. So let me draw a rough diagram. So this is your line segment AB. Okay, this is your line segment AB. You have to find a point P such that it divides this line segment into the ratio of 2:3. Right? So you know the coordinates of point A and B, they are given in the question. Okay, तो इसको तुम x1 y1 ले लोगे, इसको तुम x2 y2 ले लोगे, and here you will take as x comma y. इसको तुम m ले लो, इसको n ले लो. Now you have all the variables, right? तुम्हें ये x1 y1 पता है, तुम्हें x2 y2 पता है, तुम्हें m पता है, n पता है, xy ढूंढ लोगे using section formula. So it's a very simple sum. Please solve it by yourself. We have to move on to the third question now. What does the third question read? Third question says, find the ratio in which point T divides the line segment joining points P and Q. So again, to get a better idea of the question, to understand the question better, what I'm going to do is, I'm going to first draw a rough diagram. Okay, so let me do that. See, in these questions, drawing the rough diagram is not needed. Okay, इसके कोई अलग से marks नहीं है. But if you do draw the rough diagram, you will get better understanding of the question. Question को solve करना फिर easy हो जाएगा. So you have point P over here, which is -3, 10. You have point Q over here, which is 6, -8, and you have point T over here. Sorry for that. Point T over here, which is -1, 6. Let me just cross check the coordinates. Okay, I don't want to make any mistake on the board, that's why. T is -1, 6, P is -3, 10, and Q is 6, -8. Okay, we are right. So it's a little different, right? Why? Because generally ये point के coordinates हमें पता नहीं होते. हमें क्या पता होता है? हमें ratio पता होता है. And using the ratio we find the coordinates of this point. ये जो बीच में पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं रेशियो के हिसाब से. जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में उसको यूज करके सेक्शन फार्मूला से इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट. बट हियर दे हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज टू फाइंड द रेशियो. सी दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द रेशियो, isn't it? तो समझो ये m है एंड ये n है. So you have to find m divided by n. Okay, so what are you supposed to find? Okay, let me write to find later. So I'll write it over here. To find m upon n is equal to question mark. Okay, this is what you have to find. Why have I left space in between? Because I have to write the assumptions first, right? So I'm going to assume this as my x1, y1, this as my x2, y2, and this as my x and y. So I first have to write that. So what will I write? Let P x1, y1, Q x2, y2, and T -1, 6 be the given points.
सो कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, क्या x है, क्या y है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये तुमने खुद अज्यूम किया है. सो दैट यू विल हैव टू राइट इन द starting of the sum. Okay, and using that, what can you say? What is x1? x1 is equal to -3, y1 is equal to 10, x2 is equal to 6, y2 is equal to -8, and x is equal to -1, y is equal to, let me write it down, तो मुझे नीचे लिखने दो, we write it properly. Then x is equal to -1, y is equal to 6. Okay, what else will you have to write? ये m/n भी हमने डिसाइड किया, राइट? m/n दिया था क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा है, वो m/n हमने अज्यूम किया, दैट आल्सो यू विल हैव टू राइट. सो राइट लेट पॉइंट T divide line segment PQ in the ratio of m/n. Okay, hence तुम्हारा टू फाइंड क्या हो जाएगा? टू फाइंड विल बी m divided by n is equal to what? Always remember ratio means division. Okay, ratio means division. Now we can start solving. हमें क्या पता है? हमें तो बस एक ही फॉर्मूला पता है. I mean अभी तक हमें दो फॉर्मूलास पता है. एक फॉर्मूला we know is, कितना टेढ़ा लाइन ड्रॉ किया है. Let me correct that. I can't live with that. Let me put some thought and focus into this. Much better. Okay. So always remember ratio means division. ओके, और हमें अब तक सिर्फ दो ही फॉर्मूला पता है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है क्या? नहीं. बचा कौन सा? जब भी रेशियो ये वर्ड आ गया, एक सेक्शन फॉर्मूला. तो हमें सिर्फ दो ही सेक्शन फॉर्मूला आते हैं. एक एक्स के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, एक वाई के लिए लिख सकते हैं. तो एक्स के लिए फॉर्मूला लिख के देखते हैं क्या आता है. ओके, वी डोंट नो उससे आंसर आएगा कि नहीं या कैसे आएगा, हमें अब तक नहीं पता. ओके, बट करके देखते हैं क्या हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा हमें कैंसिल करना पड़ेगा. सो लिख के देख लेते हैं कि क्या आएगा. फर्स्ट लेट अस राइट द फॉर्मूला. ओके, सो फॉर्मूला इज x is equal to, कैसे लिखते हैं? m इंटू राइट साइड x2, m x2 प्लस n x1, n x1 the whole thing divided by m plus n. राइट, अभी जो जो हमें पता है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ओके, x क्या है? x इज -1. m क्या है? m नहीं पता, m को फाइंड आउट करना है. x2 क्या है? x2 is 6 प्लस n क्या है? नहीं पता. x1 क्या है? x1 यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो हमें m प्लस n में एक इक्वेशन मिल रहा है. नाउ लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. लेट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है. सबसे पहली बात, ये m प्लस n को वहां पे लेके जाता हूँ. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? -1 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n. यहाँ पे m इंटू 6m मिल जाएगा. यहाँ पे प्लस n इंटू -3, प्लस n इंटू -3 विल बी -3n. सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा? बाहर माइनस है ना, -1, तो अंदर का सबका साइन चेंज हो जाएगा. तो -1 इंटू प्लस m -m, -1 इंटू प्लस n -n इज इक्वल टू 6m -3n. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक ऑल द m terms on one side, take all the n terms on the other side. तो मैं किसको यहाँ पे रखूं? Let me keep n over here. Okay, n को मैं यहीं पे रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये 3n को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा. सिमिलरली -m को मैं राइट हैंड साइड ले लूंगा. 6m को यहीं पे रखूंगा और -m को यहाँ पे इस तरफ ले लूंगा. ओके, सारे m के टर्म्स एक तरफ, n के टर्म्स दूसरी तरफ. तो यहाँ पे ऑलरेडी -n था, -3n इस तरफ आएगा तो +3n हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी 6m था, -m को उस तरफ लेके जाऊंगा तो +m हो जाएगा. तो +3 -n. ओके, +3 -1 ये कैसे हो जाता है? सो यू कैन टेक n कॉमन, राइट? तो n कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? -1 प्लस
3। सिमिलरली यहाँ पे भी तो m कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा 6 प्लस 1, तो -1 प्लस 3 कितना होता है, इट इज 2, सो यहाँ पे 2n, यहाँ पे 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे 7 है। Now what do you want to find? देखो सिंप्लीफाई तो कर लिया, जो एक फॉर्मूला हमें पता था उसको यूज करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमें ये मिला है एट द एंड। अभी देखो पूछा क्या था, m डिवाइड बाय n, यहाँ से m डिवाइड बाय n आ सकता है क्या? यस, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो 7 है राइट हैंड साइड में, जो 7 है वो यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट? एंड टेक इट ऑन द अदर साइड। सो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, वो उसके नीचे 7 आ जाएगा, यहाँ पे m ऑलरेडी था, उसके नीचे n आ जाएगा। मुझे m अपॉन n मिल गया, द आंसर इज यस, मुझे m अपॉन n मिल गया। हर जगह पे देयरफॉर लगना चाहिए, ओके? यानी वो जो सॉल्व एन इक्वेशन उसके स्टार्टिंग में देयरफॉर लगना चाहिए। ओके, सो m अपॉन n 2:7 मुझे मिल गया, ओके? नाउ आई विल डू what's remaining, is my sum done here? No, I have to write the final answer in statement form. So what is the question they asked? Find the ratio in which point T divides segment joining points P and Q. The ratio in which, or I can write point T divides line segment PQ in the ratio देखो ये m/n 2/7, सॉरी m डिवाइड बाय n 2:7 मिला, राइट? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m/n इज इक्वल टू 2:7 भी लिख सकते हैं, isn't it? So राइट, इन द रेशियो ऑफ, रेशन लिखा था मैंने, रेशन की बहुत याद आ रही है मुझे, ओके? इन द रेशियो ऑफ 2:7, okay? So that's my final answer, okay? And do not forget to put it in the pencil box. So this is your final answer. तो समझ में आ गया इसमें क्या अलग था। जनरली ये जो मिडिल में पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं देते, उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं, रेशियो दिया होता है और बीच में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिए उस मिडिल पॉइंट के और हमें रेशियो फाइंड आउट करना था। तो हमें बस एक ही फॉर्मूला, हमें एक्चुअली 2 फॉर्मूला पता है सेक्शन फॉर्मूला के, एक x के लिए और एक y के लिए। तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे y का फॉर्मूला यूज किया होता, you would have got the same answer. You can check that if you want to. Okay? So हमें बस 2 ही फॉर्मूलास पता थे, उसमें से एक अप्लाई करके देख लिया, फॉर्मूला लिख दिया, जो कुछ भी पता था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या पता चला उसमें से m/n का वैल्यू निकल रहा है। एंड दैट्स व्हाट दे आस्क्ड। रेशियो फाइंड आउट करना था, कौन से रेशियो में पॉइंट T लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करना है, तो यहाँ से आ गया m/n 2:7. So that's your answer to the third question. So we are also done with the third question. Okay? So let us look at the fifth question now. Again, as always, I'm going to draw a rough diagram first so that we can understand the question easily. Okay? So find the ratio in which point P divides segment joining A and B, and also find K. So पहले let me draw line segment AB. So this is my line segment AB, and बीच में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, k,7, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स 8,9 and B के 1,2. Again I'm going to go to the textbook and just cross check my numbers so that I don't make a mistake. This is also very good practice for you in exams as well. जब भी तुम नंबर्स लिख रहे हो अपने आंसर शीट में, हमेशा क्वेश्चन के साथ एक बार क्रॉस चेक कर दो कि तुम्हारे नंबर्स ठीक है कि नहीं। कभी कभी 1 के यहाँ पे -1 लग जाता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमारा प्रोसीजर सही है, फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट स्टार्टिंग का ही स्टेप हम गलत लिख देते हैं, इसलिए 0 मार्क्स मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू ऑलवेज check whether your numbers that you have copied in your answer sheet are correct or not. Okay? So question number 5, P का है k,7, A का है 8,9 and B का है 1,2. Okay, I have written everything.
correctly. So what next? So इसमें क्या बोला है? Again find the ratio बोला है. So it's very similar to the previous sum कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और फाइंड द रेशियो पूछा है. बट आफ्टर फाइंडिंग द रेशियो यू हैव टू आल्सो फाइंड के कहां पे? यहां पे, राइट? के इज ओवर हियर. सो पहले तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. रेशियो को फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें के फाइंड आउट करना है. सो इसमें एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा होगा. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस सम. ओके, तो पहले तुम x1 y1 x2 y2 ये सब अज्यूम कर लो. so यहाँ पे मैं x1 y1 अज्यूम कर रहा हूँ, इसको मैं x2 y2 अज्यूम कर रहा हूँ, इसको x, y अज्यूम कर रहा हूँ, एंड द रेशियो आई एम टेकिंग एज m:n. okay, then you write assumptions over here. I'm not going to write the assumptions again. You write the assumptions by yourself. If you cannot, just see हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे लिखा था. Very similarly you have to write assumptions over here. okay, assumptions क्या लिखोगे assumptions में? let point a 8,9 b, sorry, let point a x1 y1 b x2 y2 and p xy be the given points. let point p divide line segment a b in the ratio of m:n. ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे. then to find में क्या है? to find में दो चीजें हैं. to find में first you have to find m:n, and second में you have to find m:n is equal to what, and second में you have to find k equal to what. Now we can start solving the sum in a very similar way as we solved for the previous sum, right? तो previous sum ने हमने x के लिए सेक्शन फॉर्मूला से शुरू किया. Can you start with x? देखो यहाँ पे जो तुम्हारा x है वो क्या k है, तो x का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो तुम x के फॉर्मूला से शुरू कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि x के फॉर्मूला से तुमने शुरू किया, तो उसमें m और n को छोड़ के बाकी सब नंबर्स पता होने चाहिए. तो बाकी सब नंबर्स पता है क्या? यस, तुम्हें x1 पता है, x2 पता है, बट x का वैल्यू k है, तो उसका वैल्यू नहीं पता तुम्हें. सो तुम x के फॉर्मूला से स्टार्ट नहीं कर सकते. सो यू हैव टू बिगिन विद y का फॉर्मूला. ओके, सो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर y. सो y विल बी इक्वल टू, यू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, m से शुरुआत करेंगे, m. नाउ गो टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में y2 है. So whenever you are writing the formula for x, you will take x1 and x2. Whenever you are writing the formula for y, you will take y1 and y2. Right? So m y2 plus, then you come to the right, n multiplied by y1. n y1, the whole thing divided by m plus n. Now start substituting. What is y? Y is 7. What is m? M you don't know. y2, what is y2? y2 is 2. तो यहाँ पे 2 m आ जाएगा, right? m वैसे का वैसा y2 2 है, तो 2 into m 2m plus n. n हमें पता नहीं, y1 क्या है? y1 is 9, so 9 n आ जाएगा. the whole thing divided by m plus n. now cross multiply m plus n here, so we'll get 7m plus 7n is equal to 2m plus 9n, right? now again you take all the m terms on one side and all the n terms on other side. so m को मैं यहीं पे रखूंगा और 2m को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा. सिमिलरली n को मैं 9n को मैं यहीं पे रखूंगा, 7n को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा. ओके, सो आई ऑलरेडी हैड 7m ओवर हियर. 2m इस तरफ आके माइनस 2m हो जाएगा. ऑलरेडी 9n यहाँ पे था, 7n यहाँ पे आके माइनस 7n हो जाएगा, राइट? ऑलवेज पुट देयरफॉर साइन whenever you're solving equations. okay, so 7m minus 2m is 5m, 9n minus 7n is 2m. so अभी m यहाँ पे n जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. so what will we get? m divided by n as m divided by n we will get as 2 upon 5, right? hence what is our ratio? m is to n is equal to 2 is to 5. okay, so done with the first part of the question. okay, first part of the question आ गया हमें 2 is to 5. अभी हम second part के लिए क्या करेंगे? अभी हमारे पास रेशियो आ गया, राइट? सो बस x का फॉर्मूला यूज कर लो. अभी यू नो कि ये प्रॉब्लम सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो y का फॉर्मूला यूज कर लिया. अभी बचा क्या? x का फॉर्मूला. तो x का फॉर्मूला यूज करके देख लो, उसमें से k आ जाएगा. ओके, is this a straight line?
seems like it. Okay, so let us start using x का formula. तो x is equal to start from left hand side m into right hand side x2, m x2 plus right hand side में चले आओ n into x1, n into x1 the whole thing divided by, ये इसको थोड़ा दूर रखो, अलग रखो, divided by m plus n. Okay, now start substituting. What is x? X is k. m हमें पता है, m क्या है अभी? Okay, m हमें नहीं पता है, हमें m divided by n पता है, right? We don't know m क्या है, n क्या है. So what you can do is you can take the common multiple x over here and then put it here, or you can do one more thing. Okay, I'll show you the trick. So on the right hand side, divide the numerator and denominator by n. Okay, I'll show you what I mean. X is equal to mx2 plus nx1. Okay, let me write this in a different color. Remember, तुम m हमें m divided by n का वैल्यू पता चला है. Okay, m divided by n का 2.2 divided by 5 वैल्यू पता चला है. इसका मतलब ये नहीं होता कि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 5 है. ऐसा कभी भी बात सब्स्टिट्यूट करना. You only know m divided by n. m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 5 है, तुम्हें नहीं पता, वैसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो. So what I'm going to do is I'm going to divide the numerator by something and denominator by the same thing. mx2 plus nx1, the whole thing divided by n. Okay, so numerator को मैंने n से divide कर लिया and I'm dividing the denominator by n. Okay, m plus n divided by n. Clear है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने n से डिवाइड कर लिया. Why am I doing this? It will become clear in the next step. Okay, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x. x is equal to. Okay. So अब तक क्लियर है? I think वो ब्लू वाला पार्ट मैंने बहुत ज्यादा ऊपर लिखा है. I don't want any confusions here. Let me write that down again. mx2 plus nx1 divided by n. So न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड कर दिया. So अभी मुझे क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद? I will get x is equal to, यहाँ पे m डिवाइड बाय n आ जाएगा. So m डिवाइड बाय n x2 प्लस यहाँ पे n डिवाइड बाय n कट हो जाएगा, राइट? n डिवाइड बाय n. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ x1 मिलेगा. The whole thing divided by, यहाँ पे भी सेम m डिवाइड बाय n क्या मिलेगा, वैसे का वैसा लिख दूंगा मैं, प्लस यहाँ पे n डिवाइड बाय n क्या मिलेगा, 1. Now I can substitute m divided by n, right? It's a simple trick. It is used many times in different sums. It's better to learn this trick. Okay, so now we can start substituting. m divided by n क्या है, 2 by 5. Sorry, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है k. So k is equal to 2 divided by 5 into x2. x2 का वैल्यू क्या है, 1 प्लस x1. x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 8 है, राइट? So here I will get 8. The whole thing divided by 2 by 5 plus 1. Okay. Now again you'll have to solve this a little. Let me do one more step over here. यहाँ पे देखो 2 by 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, राइट? तो सेम मिलेगा मुझे 2 by 5 प्लस 8. तो मैं 5 को उस तरफ लेके जाऊंगा. 5 8 जा 40. हाउ डू यू सॉल्व फ्रैक्शंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. सो इफ आई कट दिस 1, तो इन दोनों को मुझे अगर ऐड करना है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है. सो इस 1 को भी मुझे 5 करना पड़ेगा. कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5. आई विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 ओवर हियर. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. तो मुझे क्या मिलेगा न्यूमरेटर में? आई विल गेट k इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, सो 2 हियर, देन प्लस 5 8 जा 40, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 5. होल थिंग डिनोमिनेटर में भी सेम, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1/1 था. आई हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड दिस बाय 5 ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए.
right? So here I have 2, right? 2 over here plus 1 into 5 will become 5, the whole thing divided by 5. Okay, यहाँ पे भी 5 है. Now remember the way you solve fractions. Fractions को कैसे solve करते हैं हम? When you have, say for example, a divided by b, the whole thing divided by c divided by d. तो a डिवाइड बाय b को वैसे के वैसे लिखते हैं और c डिवाइड बाय d को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो c डिवाइड बाय d है ना, तो उसको उल्टा करो, d डिवाइड बाय c करके मल्टीप्लाई कर लो. तो सेम थिंग we'll have to do over here. Okay, so let us do this on left hand side. I'm going to erase this part. Okay, so if you want to copy it right now. I hope you have already written the assumptions while copying or to find. I'm going to erase this part. Okay, so k is equal to I'll write 2 plus 40 कितना हो गया 42. 42 डिवाइडेड बाय 5 वैसे के वैसे लिख दिया, a बाय b को वैसे के वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो. सो यहाँ पे 2 plus 5 7 न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में डाल दूंगा. नीचे 5 आया तो यहाँ पे मैं ऊपर 5 डाल दूंगा. वाई? बिकॉज उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे c बाई डी है तो d बाई c से मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ यहाँ पे 5 गेट्स कैंसल्ड, राइट? यहाँ पे 5 गेट्स कैंसल. 7 7 49, 9 minus 7 is 2. So 7 1s are 7 and this is 7 6 is 42, right? So what am I getting k as? K I am getting as 6. Okay, so मुझे k का वैल्यू मिल गया. बस ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. There's one more method that you can say that let the common multiple be say w. Let the common multiple be w. So m will be 2w, n will be 5w. और फिर बाद में वो w कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं पे. वैसे भी तुम लोग कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो. I feel this is a little longer method, but once you get the practice, ये 30 seconds में हो जाएगा इतना सा पार्ट. Okay, so you've got the value of k. Now the final answer. Final answer में क्या लिखोगे? First you will write the ratio point P divides line segment AB in the ratio, क्या है रेशियो? 2:5 and value of d. दो चीजें पूछी थी, राइट? and value of d नहीं, k. value of k is 6. so this is your final answer in statement form and you will put this in pencil box. Okay, so what was so different about this sum? See, the first part was very similar. तुम्हें y के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखना था, उसमें सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें रेशियो मिल गया. तो दिस पार्ट वाज वेरी सिमिलर टू आवर प्रीवियस सम, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें अलग क्या था? फिर बाद में x का वैल्यू हमें k दिया था, राइट? तो तुम्हें k के लिए x का वापस सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ा. और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन था? तुम डायरेक्टली m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 5 नहीं डाल सकते, तुम सिर्फ m डिवाइडेड बाय n डाल सकते हो. तो उसके लिए क्या ट्रिक सीखा हमने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दो. ओके, कैसे डिवाइड कर सकते हैं? n कैंसिल हो जाता है, राइट? सो द वैल्यू रिमेन्स द सेम. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड कर लिया. सो व्हाट यू गेट हियर इज m बाय n, और यहाँ पे n कैंसिल हो जाता है, n डिवाइड बाय n 1 आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पे m बाय n आ जाएगा, यहाँ पे n डिवाइड बाय n 1 आ जाता है. सो m बाय n जब एक बार आ गया हमें, उसी के लिए हमने वैसा किया था. एक बार m बाय n आ गया तो हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2/5. तो वहां पे 2/5 सब्स्टिट्यूट किया. फिर सिंपल कैलकुलेशन था. ये कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए. देखो योर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तुम्हें सिंपल कैलकुलेशंस आने चाहिए. एंड हेंस दे से मैथमेटिक्स में इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रांग यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सम. सो 7th 8th 9th के बेसिक्स अगर तुम्हारे स्ट्रांग है तो ये सब काफी इजी होना चाहिए. मुझे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. ओके, बट स्टिल आई हैव रिवाइज्ड कि अगर a डिवाइड बाय b द होल थिंग डिवाइड बाय c बाय d होता है तो क्या करते हैं? a बाय b को वैसे के वैसे एंड c बाय d को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऑल्सो हाउ डू यू ऐड टू फ्रैक्शन? दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए.
तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 1 था, तो इसको इस 1 को 5 करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, बिकॉज अपने मर्जी से सिर्फ न्यूमरेटर सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते, जो कुछ भी न्यूमरेटर में कर रहे हो सेम डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में कर रहे हो सेम न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे and I divide here in the numerator by n, denominator में भी n से divide करना पड़ेगा, same logic here, if I am multiplying denominator by 5, numerator में भी 5 से multiply करना पड़ेगा। Similarly here you multiply the fractions and solve it and you finally get the value of k as 6 and then you put the final answer। तो बस यहाँ से जो पार्ट था वो थोड़ा एक्स्ट्रा था और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ा, ओके, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट विल बी हेल्पफुल इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। उसमें जनरली ऐसे टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन आते हैं जहां पे ट्रिक काफी यूजफुल हो सकता है, ओके, व्हेन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अ रेशियो। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10, ओके। Okay, let us now move on to our last question for the day, which is question number 10 of practice set 5.2. Let me read out the question first. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment AB with A and B उसके coordinates दे दिए, okay? So trisection का मतलब क्या है? Bisection कभी सुना है तुमने? Bisection, bi यानी two, okay? Section यानी parts. So whenever something is divided into two equal parts, we said that it is bisected, okay? Similarly, अगर bisection का मतलब है कि दो equal parts में divide कर रहा है, तो trisection का मतलब क्या होगा? मैंने तुम लोग hint भी दे दिया अपनी उंगलियों से। Trisection यानी तीन equal parts में divide कर रहा है, okay? Bisection यानी two equal parts में divide कर रहा है, bi means two, and trisection यानी तीन equal parts में divide कर रहा है, tri means three, okay? So let me draw the diagram first. So here is my point A, here is my point B. तो इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड करना है, राइट? तो यहाँ पे एक सेक्शन, यहाँ पे एक सेक्शन, तो तीनों इक्वल सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर लिया, ओके। लेट मी टेक द पॉइंट्स एज पी क्यू, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज पी, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज क्यू, ओके। तो हमें पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट ए एंड बी के दे दिए, ओके। पॉइंट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, point P and Q के coordinates हमें find out करना है। How will you solve this? This is a little different from all other sum. What do you think should be our approach to solve this sum? What I want to do is pause the video here and think what will be your approach. Point A के coordinates पता है, point B के coordinates पता है, ये तीनों टुकड़े, ये तीनों sections equal है, इतना पता है। Point Q नहीं, point P और point Q के coordinates हमें find out करना है। कैसे करोगे? Pause the video here and think for a few minutes. How will you solve this sum? What will be your approach? Okay, I'll wait for you to pause the video here. Okay, I hope you're done pausing the video and you have thought at least something. It's okay if you were not able to get the correct solution or the correct approach, but it's great that you actually paused the video and thought about it, okay? So the more you practice different kinds of sum, the better you will get at solving different types of sum. So here is the solution. One of the ways you can solve this sum is, first assume that all these parts are equal to x, okay? Assume all these parts are equal to x. Now what will you do? Assume the Q was not here, okay? Assume point Q यहाँ पे नहीं था। अगर point Q यहाँ पे नहीं था तो ये पार्ट x है, ये पार्ट 2x है, बराबर। तो रेशियो तुम्हें मिल गया, x upon 2x will be x कैंसिल हो जाएगा, राइट? What will be AP upon PB? AP upon PB, राइट? We are assuming कि Q यहाँ पे है ही नहीं, ओके? तो AP अपॉन PB कितना होगा? AP क्या है? AP is x, PB क्या है? PB is 2x, x plus x, 2x. Here it will be x upon 2x. So this is equal to, यहाँ पे x का कैंसिल हो जाएगा तो 1 upon 2. तो AP अपॉन PB का तुम्हें रेशियो मिल गया 1:2, राइट? सो अब तुम P का वैल्यू ढूंढ सकते हो, P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये तो अभी नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला हो गया, राइट? कि तुम इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, ये तुम्हारा M1 हो गया एंड n तुम्हारा 2 हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो पहले Q को ऐसे अज्यूम करो कि Q है ही नहीं और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो। फिर एक बार P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर P को अज्यूम करो है ही नहीं वहां पे, ऐसे सोचो कि P है ही नहीं वहां पे।
तो फिर ए क्यू के लिए भी वैसे कर सकते हो, ए क्यू अपॉन क्यू बी क्या हो जाएगा, ए क्यू विल बी 2x, क्यू बी विल बी x, x x कैंसिल होके 2:1, तो m2 हो गया, n1 हो गया, बराबर। सो फिर बाद में तुम अज्यूम कर लो या फिर ऐसे समझो कि p है ही नहीं और q के लिए तुम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो, बस 2 बार फाइंड आउट कर लें। इसमें ट्रिक क्या था कि पहले x अज्यूम करो कि सारे 3 टुकड़े इज इक्वल टू x, पहले वो इंपॉर्टेंट स्टेप था। और फिर इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या था हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि एक टाइम पे एक ही पॉइंट के बारे में सोचो, दूसरे पॉइंट को इग्नोर कर दो। सो दैट वाज द ट्रिक ओवर हियर। ओके, सो एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। So let me first find coordinates of point Q. To find coordinates of point Q. Okay. So again I'll draw the diagram अलग से for sorry Q क्यों लिखा मैंने, P का फाइंड आउट करना है, पहले P पॉइंट का फाइंड आउट करेंगे। So I'll draw the diagram again for point P. ओके, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,7, B के कोऑर्डिनेट्स -4, -8, P यहाँ पे है, P के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, उसको हम x, y ले लेंगे। यहाँ पे तुम्हारा x है और यहाँ पे तुम्हारा 2x है, बराबर। नाउ यू फाइंड okay, again you'll have to write, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ सॉरी x2 नहीं y1 आएगा, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2। ओके, एक्चुअली लेट्स नॉट टेक दिस x, ओके, क्योंकि बहुत सारे xy हो रहे हैं, इसको हम x नहीं लेते, इसको हम a ले लेते हैं। ओके, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सारे छोटे छोटे टुकड़ों को a ले रहे हैं और यहाँ पे सारे, यहाँ पे ये a हो जाएगा, यहाँ पे ये 2a हो जाएगा। ओके, इसको x1 y1, इसको x2 y2, xy हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला नाउ। हाउ विल यू अप्लाई द फॉर्मूला? x विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो। ओके नहीं, इससे पहले तुम्हें m और n क्या है, फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 क्या है ये तो पता चल रहा है डायग्राम में से, m और n क्या है। सो यू फर्स्ट राइट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB into in the ratio of A is to 2A। ओके, एक्चुअली A is to 2A नहीं, M is to N लिखते हैं, रेशियो ऑफ M is to N, therefore M डिवाइड बाय N क्या हो जाएगा, A अपॉन 2A, A कैंसिल, which is equal to 1/2। ओके, सो हमें M is to N 1/2 आ गया। ओके, नाउ यू स्टार्ट फाइंडिंग x। ओके, सो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग, m इज व्हाट, m इज 1 into x2, x2 is -4, प्लस n क्या है 2, x1 क्या है 2, द होल थिंग डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। सो -1 into 4 -4, 2 into 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। सो -4 प्लस 4, -4 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 3 0 हो जाएगा। सो दिस यू आर गेटिंग एज 0। ओके, नेक्स्ट y के लिए भी सेम फॉर्मूला लिखो, my2 प्लस ny1, द होल थिंग डिवाइडेड बाय m प्लस n। m क्या है हमारा 1, y2 व्हाट इज y2 -8, प्लस n क्या है हमारा 2 इंटू y1 इज 7,
the whole thing divided by m plus n, which is 1 plus 2. यहाँ पे 1 into -8, 2 into 7, 14, the whole thing divided by 3. 14 minus 8, what is 14 minus 8? It will be 6. 6 divided by 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, right? So ये 2 हो गया. यहाँ पे 14 minus 8 आ गया 6 divided by 3 आ गया 2. तो तुम्हें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? They are 0,2. Okay, 0,2 आ गए. Similarly, you will do the same thing for point Q. Okay, same thing you will do for point Q. So you will write to find coordinates of point Q. To find coordinates of point Q. वापस एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. अगेन द मोर डायग्राम्स यू ड्रॉ द इजियर इट इज टू अंडरस्टैंड, उतना कंफ्यूजन कम हो जाएगा. ओके, तो गलती से कोई गलत नंबर वगैरह तुम्हारा ऐड नहीं होगा. सो यहाँ पे अभी पॉइंट Q है. पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स है 2,7. पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है -4,8. पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम x, y ले रहे हैं. यहाँ पे ये 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, यहाँ पे ये a हो जाएगा, राइट. यहाँ पे a प्लस a 2 है और यहाँ पे a आ जाएगा. सो इतना लिख दिया. अगेन इसको x1 y1 ले रहे हो, इसको x1 y1 लेंगे, राइट. x1 y1, इसको x2 y2. यहाँ पे -8 है, राइट. 4, -8. Okay, write the same thing over here. Point Q divides the line segment AB. So write it here. Point Q divides AB in the ratio m is to n. So m divided by n हो जाएगा 2a divided by a. 2a divided by a. a कैंसिल हो जाएगा, so 2:1 आ जाएगा. Okay, I just again start using the formulas. पहले फॉर्मूला लिखो, उसमें सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर लो. Okay, so x is equal to mx2 plus nx1 the whole upon m plus n. ये क्या आ जाएगा? Your m is, यहाँ पे m अभी 2 हो गया. ओके, m तुम्हारा 2 हो गया. So 2 into x2. What is x2? It is -4 plus n. n तुम्हारा 1 हो गया. x1 क्या है? x1 is 2. ओके, divided by 2 plus 1. तो कितना हो जाएगा? 2 into -4 -8 plus 2 upon 3. तो -8 plus 2 कितना हो गया? -8 plus 2 will be -6. तो -6 by 3 -2 आ जाएगा, राइट. सिमिलरली यू पुट y का फॉर्मूला. y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. m is 2, n is 1 upon 2 plus 1. What is y2? y2 is -8. What is y1? y1 is 7. So -2 into 8 कितना हो गया? -2 8 जा -16 plus 7 the whole divided by 3. -16 plus 7 कितना हो जाएगा? It will be 9. -9 हो जाएगा. So -9 by 3. -9 by 3 will be 3. -3. Right? So -2, -3. तो हमें Q के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, -3. What is left? Left is the final answer. Final answer. Okay, I'll write it over here. Okay, final answer I'll write it over here. How will you write? तुम्हें क्या पूछा था? Find the coordinates of point of the trisection. वो points क्या लिए हमने? Point P and Q, right? So you'll write point P. Points P. P के कोऑर्डिनेट्स लिख दो 0, 2,
एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख दो -2, -3. ओके, -2, -3 are the required points. Can put this in pencil box. Okay, let me check the answer. Okay, the answer is correct. Okay, so what was different about this sum? The thing which was different about this sum was कि तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट नहीं दिए थे, बीच में 2 पॉइंट्स दे दिए थे, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या था, ट्रिक क्या था? एक पॉइंट को गायब कर दो, अज्यूम कि एक पॉइंट है ही नहीं, और पहले दूसरे वाले पॉइंट पे फोकस करो. तो ओनली फोकस ऑन पॉइंट पी, सो फोकस ऑन पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कुछ भी लिख दिया, और सिर्फ पॉइंट पी के लिए तुमने फॉर्मूला अप्लाई करके उसके कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए 0,2. फिर अभी पॉइंट पी को तुमने गायब कर लिया और पॉइंट क्यू को तुमने सिर्फ कंसिडर किया. सो पॉइंट क्यू को कंसिडर करके फिर वापस तुमने 2 बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करके उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, उसका भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आ गया. दैट वाज इट, यही अलग था. और एक क्या ट्रिक था कि तुम्हें बोला था कि ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन यानी तीनों पार्ट्स इक्वल है, तीनों पार्ट्स इक्वल है, तो ये ए. तो एक बार जब तुम सिर्फ पी को कंसिडर करोगे तो ये पार्ट ए हो जाएगा और ये a + a 2a हो जाएगा. तुम लोग सिर्फ जब क्यू को कंसिडर कर रहे हो तो लेफ्ट का साइड 2a हो जाएगा, a + a, ये पार्ट 2a हो जाएगा, ये पार्ट a हो जाएगा. तो यहाँ पे तुम्हारा m1 है और n2 है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, m2 है और n1 है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. एंड देन the remaining calculations etc, application of the calculations, writing the formula, everything was very simple. बस इनको 2 अलग अलग केसेस बनाने, तुम्हें एक क्वेश्चन में से तुम्हें 2 अलग अलग केसेस बना के दोनों को सिस्टमैटिकली सॉल्व करना था. दैट वाज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस सम, दैट वाज द ओनली डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस सम. ओके, एंड द मोर यू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स, द बेटर यू विल गेट एट टू फिगरिंग आउट कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तुम बस एक प्रॉब्लम को देख लोगे, अच्छा भैया ने बोर्ड पे ऐसे सॉल्व किया, तो अगली बार कोई और नया प्रॉब्लम दूंगा तुम खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे. यू शुड बी एबल टू सी डिफरेंट types of problems, only then you will be able to solve all these different types of sums, challenging types of sums by yourself. Okay, so we are also done with the 10th sum and we are also completed this objective. Okay, so just check, will you be able to solve problems based on section formula if I give you a different type of problem at the end of the learning session? If yes, then you have achieved today's learning objective and even yesterday's learning objective. If not, if you still don't think you're confident enough to solve problems based on section formula, then you need more practice. Okay, practice again and again. Practice sums from the practice set, practice sums from the solved examples, and you should be you'll feel more comfortable with solving problems based on section formula. Okay, so that is it for this learning session. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next learning session. Till then, bye and peace.